हेलो, हाँ जी। नेक्स्ट देखो बेटा, थानू क्या सी फिफ्थ एग्जाम्पल खुद पढ़नी है। पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब एट टी ज़ीरो यू इज़ ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। इफ़ द फोर्स एक्टिंग एट एनी इंस्टेंट इज force is mk cos t and we take force mf, so we have f is equal to this. Now f is a function of t, therefore we will take it dv upon dt. Now integrating with respect to this, since the particle starts from rest, therefore v is 0 when t is 0, therefore c1 is equal to 0, so v is equal to this. Now again v is a function of t, will take dx upon dt. So in this way we solve the sum. In next example, a particle moves according to the law, सारा दिता होया, तुसीं सारा खुद रीड आउट कर लेना। उस तो नैक्सट अपने को एग्जाम्पल नंबर 8 है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर अ रिटारडेशन के वी स्क्वेयर। रिटारडेशन की हुंदा है, एफ नू माइनस च लैना, माइनस के वी स्क्वेयर। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ यू, इनिशियल का मतलब एट टी ज़ीरो, वेलोसिटी इज़ यू, शो दैट द स्पेस डिस्क्राइब्ड इन टाइम टी इज़ दिस. We have acceleration f is equal to minus k v square, so v into dv upon dx is equal to minus k v square. dv upon v is minus k x. वेरिएबल सेपरेबल मैथड लगा लिया क्योंकि f इज़ अ फंक्शन ऑफ v है, देयरफॉर आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ f एज v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स. नाउ इंटीग्रेटिंग v गेट log v is equal to minus kx plus c1, where c1 is a constant of integration, and initially they said that initially v is equal to u, और initially distance covered कितना ਹੁੰਦਾ 0, सो उनके नाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ c1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ c1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 9। ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵਸ ਇਨ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰੋਮ ਰੈਸਟ from a distance c to the center of attraction. Now देखो it starts from rest, मतलब u is 0 and point already वो c ते खड़ा, जिथे उन्हें start करना ना वो c point तो start करन लगा. that means we will take when t is 0, u is 0 but x is equal to c, कि start ही उन्हें c तो किता, किथे ते जा रहा to a center of attraction towards which the force per unit mass is this. Force per unit mass is mu upon x cube, where x is measured from center. Show that time required to reach the center is this. Now consider O as the center of attraction. Clear? A initial position of the particle, so that O A कितनी दी हुई है C, तुहानू ऑलरेडी किया है ना कि कित्थों स्टार्ट करता है C तो. लेट P be any position of the particle such that OP is equal to X. ठीक है, OA की है C. नाउ वी हैव फोर्स पर यूनिट मास का मतलब होंगे पर यूनिट मास मतलब m की वैल्यू 1, सो वो होंगी एक्सलरेशन. So acceleration of the particle towards the center is mu upon x cube. Acceleration towards the positive x axis की हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, और रिटार्डेशन हो जाएगी ऑपोजिट. नाउ एफ इज़ दिस. सब तो पहला तो देखो फोर्स पर यूनिट मास होंगे एक्सलरेशन. मैं पॉजिटिव लैना है या नैगेटिव लैना है मैंने स्टेटमेंट तो क्लियर होएगा. अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस c to a center of attraction towards which the force per unit mass is this, where x is measured from the center. सेंटर तो p तक वैल्यू x है, पार्टिकल ने सेंटर वाल नू जाना, ठीक है. एक्स एक्सिस इस करके मैं इधरली साइड लेती है, देयरफॉर आई हैव टेकन हियर माइनस साइन, ठीक है. देन सॉल्व इंटीग्रेटिंग c1 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वैल्यू आ जाएगी ताड़ी वैन इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट डिस्टेंस की है c, सो सॉल्व करके ताड़े कोल इत्थे तक बन जूगा. अगेन इंटीग्रेशन करके सॉल्व करके ताड़े कोल एक्स की वैल्यू आ जाएगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है पेपर के लिए भी.
A particle having mass m is acted upon by a force this. Force is m into f, therefore we have f is equal to this. ठीक है. Now if it start from a distance a from the origin, show that it will reach the origin after the time this. सब तो पहला देखो force किन्ने दिती हुई है m into this, and we will take the force as m f, and here this is the function of x, therefore we will take the value of acceleration in terms of x, so v dv upon dx. next ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ solve ਕਰੋਗੇ, integrate ਕਰੋਗੇ, c1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ. start from rest at a distance a ਦਾ ਮਤਲਬ v0 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਈ ਹੈ. ठीक है. उस तो बाद वैल्यू फिल करन तो बाद तुहाडे कोल v आ गई, एंड वी हैव टेकन dx by dt. वेलोसिटी हैज़ बीन टेकन नेगेटिव बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन. उन्हें वापस ओरिजिन वाल आना है, इस करके वेलोसिटी जिहड़ी है वो नैगेटिव लिती गई है, क्योंकि v स्केयर करते तो मेरे को पॉजिटिव नैगेटिव दोनों आंसर आने सी, बट आई विल टेक नैगेटिव बिकॉज जा किंदे वाल नूं रहा, पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स ओरिजिन. ठीक है. उस तो बाद अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पैक्ट टू टाइम, इनिशियली कंडीशनस दित्तियां वो फिल कर देनी है. लेट कैपिटल टी बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ओरिजिन इज x0, सो उहदे नाल तुहाडे कोल कैपिटल टी दी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है इत्थे तक.